السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 3، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا کیا گیا شاندار پیمانے پر آغاز۔ اس افتتاحی تقریب میں ریاستی گورنر جشنو دیو ورما، سی ایم ریونت ریڈی کے علاوہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کی شرکت۔ رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی کے قیام گاہ میں عوامی ہلچل۔ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے سرپنچوں سے ملاقات کرتے ہوئے رورل ایم ایل اے نے پیش کی مبارکبادی۔ نظام آباد اربن حلقے میں 2 سالوں میں 130 کروڑ روپے بھاری فنڈ کی منظوری عمل میں لا کر کئی ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کا نظام آباد بی جے پی دفتر میں منعقدہ میڈیا اجلاس سے اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن گپتا کا اظہار۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 150 شراب نوشی کے مقدمات کیے گئے درج۔ 13,32,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا سی پی سعید چیتنیا نے کیا اظہار۔ ملازمین پوسٹل بیلٹ کے تحت اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ ایم پی ڈی او دفتر میں ووٹر فیسیلیٹیشن سینٹر کو قائم کرنے کا انتخابی آفیسر کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے کیا اظہار۔ بھینسہ مستقیر میں خاتون کی دن دہاڑے قتل کی واردات۔ قاتل خون آلودہ کپڑوں میں نعش کے ہی پاس بیٹھا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر آئینی شاہدین حیرت میں پڑ گئے۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے میونسپل کمشنر آرمور سے کی گئی نمائندگی۔ مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے میونسپل کمشنر آرمور سے نمائندگی کی گئی۔ اس موقع پر صدر مجلس آرمور و سابق انچارج کونسلر محمد ظہیر علی نے صحافیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج جو آرمور میونسپلٹی میں مکانات کے ٹیکس سے متعلق منمانی طریقے سے رقم وصولی کیا جا رہا ہے، ریاست تلنگانہ میں کہیں بھی منمانی نہیں ہے جو آرمور میونسپل کونسل میں ہو رہی ہے، کیونکہ آرمور میونسپل میں پریکٹ کوتارمور اور مامڈی پلی دیہاتوں کو ضم کیا گیا تھا۔ جب میونسپل ٹیکس میں اضافہ کیا گیا، پھر سے دوبارہ ٹیکس میں اضافہ کرتے ہوئے عوام سے زائد رقم وصولی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ چھوٹے مکانات کے لیے 600 تا 900 روپے تک ٹیکس ادا کر رہے تھے، ان لوگوں کو آج 5,000 روپے ٹیکس لگایا گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قبیلی یا ٹی شرٹ کے مکانات کو 3,000 روپے ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگ کو بھی 3,000 روپے ٹیکس ہے، اور کئی ایسے کمرشل بلڈنگ ہیں انہیں بھی اتنا ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جس سے وہ غریب لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ کرونا وبا سے لے کر آج تک پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کاروبار صحیح طور پر نہیں چلنے کی وجہ سے عوام کافی پریشانی میں مبتلا ہے، اور میونسپل کونسل کے اندر منمانی کی جا رہی ہے۔ جب بل کلکٹر ٹیکس وصولی کے لیے آتے ہیں تب ادا نہیں کریں گے تو پینلٹی کے ساتھ 12,000 روپے سے زائد رقم ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور کئی ایسے غریب لوگ ہیں جن کے ٹیکس بڑے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اسی ضمن میں مجلس وفد نے آرمور میونسپل کمشنر ایم روی بابو سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے سوال کیا کہ
टैक्स वसूली में मनमानी की जा रही है, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने सबूत चाहिए कहा। तब सदर मजलिस आरमूर ने बताया कि हमारे पास कई शिकायतें और सबूत के साथ तैयार है, इसलिए म्यूनसिपल दफ्तर पहुंचे हैं, लेकिन हमारा मतलब है कि म्यूनसिपल कमिश्नर मनमानी ना करे और म्यूनसिपल एक्ट के तहत अपने बिल कलेक्टर व ऑफिसर को भेजकर फिर से मेज पर रखा जाए, इस लिहाज से टैक्स दिया जाए। अगर मनमानी की जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं रहेंगी। बाज़ाब्ता म्यूनसिपल काउंसिल पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और हुकूमत को हला देने का इंतबाह दिया। हुकूमत तेलंगाना और ज़िला कलेक्टर को बताना चाह रहे हैं कि आरमूर म्यूनसिपल में ये क्या हो रहा है, कोई पहुंचने वाला नहीं है और गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर का मतलब है कि ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद और आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर टैक्स से मुतालिक सही तरीके से काम अंजाम दे, वरना म्यूनसिपल काउंसिल का गहराव करने का इंतबाह दिया। इस नुमाइंदगी मोहतमद अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, निज़ामुद्दीन नदीम। आज जो आरमूर म्यूनसिपाल्टी के अंदर टैक्स मनमानी तरीके से वसूल किया जा रहा है, रियासत तेलंगाना के अंदर कहीं भी इतनी मनमानी नहीं है जितनी आरमूर म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर है। क्योंकि जो आरमूर म्यूनसिपाल्टी के अंदर मामिडपल्ली, पेरकिट, कोटारमूर को जब मर्ज किया गया उसके बाद भी टैक्स बढ़ाए गए, लेकिन फिर से उसी टैक्स को फिर बढ़ाकर जिसका टैक्स 6 से 700 रुपये, 900 रुपये है, उनको 5-5 हज़ार रुपये टैक्स लगाया गया है। और जो छोटे छोटे कवेली के घर है या टीन शेड के घर है उसको भी टैक्स जो है 3,000 रुपये है, और एक बड़ी बिल्डिंग को भी 3,000 रुपये है, और कई ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग है उसको भी टैक्स जो है 4,000 रुपये है, और छोटे से कवेली के घर को और टीन शेड को जो है 4,000 रुपये टैक्स है। गरीब लोग परेशान है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल में है। कोरोना के बाद कोई कारोबार नहीं है, आज हर आदमी परेशान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर मज़हब के लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। और म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर मनमानी की जा रही है। जब बिल कलेक्टर टैक्स वसूली के लिए आता है वो कहता है कि तुम्हारा टैक्स 5,000 रुपये है, अगर नहीं बनेंगे तो मंथली जो है पेनाल्टी पे पेनाल्टी मारकर 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पेनाल्टी के साथ टैक्स दिया जा रहा है। लोग परेशान हैं और म्यूनसिपाल्टी के अंदर मनमानी की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा व जमियत अहले हदीस के ज़िम्मेदारों की सब कलेक्टर भैंसा संकित कुमार से ज़ईफ़ व अनपढ़ अफराद के बर्थ सर्टिफिकेट के सिलसिले में मुलाकात। सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन साहब ने खुद्दाम व जमियत अहले हदीस के ज़िम्मेदारों के हमरा भैंसा सब कलेक्टर अजमेर संकित कुमार से दफ्तर में मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि ज़ईफ़ अफराद जिनकी उम्र 60 साल 70 साल है, इनके पैदाइशी सर्टिफिकेट जिनकी एप्लीकेशन देकर 2 से 3 माह हो चुके हैं, जल्द अज जल्द जारी करें। जिस पर भैंसा सब कलेक्टर अजमेर संकित कुमार ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द आला ओहदेदार से मुलाकात करके इस मसले का हल निकालेंगे। वाज़ेह है कि साबिक़ में ज़ईफ़ अनपढ़ लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट भैंसा RTO ऑफिस से जारी किए गए थे। इस मौके पर सफ़ा के खुद्दाम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मुफ्ती इरफान साहब, अब्दुल रज़्ज़ाक़ शेख इरफान, जमियत अहले हदीस भैंसा के ज़िम्मेदार अनवर साहब व इसहाक़ साहब मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा और जमात अहले हदीस के साथियों ने भैंसा RDO ऑफिस आके सब कलेक्टर साहब से मुलाकात करें और एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए उसमें एक ये दरख्वास्त की कि भैंसा व अतराफ़ के जितने भी इलिटरेट अनएजुकेटेड पर्सनस हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। साबक में भी RDO ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी RDO ऑफिसर्स आए थे वो लोग भी जो इलिटरेट है, अनपढ़ लोग हैं, वो लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करे थे। तो हम सब कलेक्टर संकेत साहब से गुजारिश करने आए और मुलाकात भी हुई, तो इस बात का मुताला करें कि वो भी जल्द अज जल्द जो तकरीबन 4 माह 5 माह से पेंडिंग बर्थ सर्टिफिकेट है अनपढ़ लोगों के, उसे जारी करें। उन्होंने हमसे मुलाकात करते हुए तयक़ुन दिए कि वो जल्द अज जल्द इस काम को अंजाम देंगे।
इस मौके पर सफ़ा के और अहल हदीस के साथी मौजूद हैं। भैंसा मुस्तकिर में खातून की दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। कातिल खून आलूद कपड़ों में नाश के ही पास बैठा रहा। ये मंजर देखकर आईनी शाहिदीन हैरत में पड़ गए। भैंसा टाउन में एक 27 साला खातून अश्विनी को इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। वारदात संतोषी माता मंदिर के करीब वाक़े एक टी पॉइंट में पेश आई, जहां मुकामी अफराद ने चीख व पुकार सुनकर पहुंचने पर खातून की नाश को खून में लुथपुथ पड़ी हुई हालत में देखा, जबकि कातिल मौके वारदात पर ही मौजूद था। इत्तलात के मुताबिक मकतूलों का ताल्लुक कुनसरा गांव से था। इसकी पहली शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। ताहम शौहर से तलाक के बाद वो घर वालों से अलग रह रही थी। इस दौरान इसकी दोस्ती भैंसा के अम्बेडकर नगर के रहने वाले नगेश से हुई। दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। माशी ज़रूरियात के पेश नज़र खातून मज़कूरा टी पॉइंट चलाते हुए अपना गुजर बसर कर रही थी। इस दौरान नगेश को शुबा हुआ कि अश्विनी के ताल्लुकात किसी और से कायम हो गए हैं। इस मसले पर पीर की सुबह दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान नगेश ने खातून पर हमला करके कत्ल कर दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कत्ल के बाद ही मुल्जिम नाश के साथ जाए वारदात पर ही बैठा रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगेश को गिरफ्तार कर लिया। भैंसा से आई गोपीनाथ ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। निज़ामाबाद तेलुगु प्रिंट मीडिया स्टाफर्स एसोसिएशन की नई कमेटी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब। निज़ामाबाद तेलुगु प्रिंट मीडिया स्टाफर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास इतवार के रोज़ जनरल सेक्रेटरी ताड़ाला श्रीधर की सदारत में R&B गेस्ट हाउस में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अहम उमूर पर तफसीली बहस की गई। इजलास में कमेटी में तब्दीली का फ़ैसला किया गया। अक्सरियती अरकान के फ़ैसले के मुताबिक एसोसिएशन के सदर की हैसियत से प्रेसिडेंट जी श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी शेख अहमद, कैशियर किशोर गौड, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हरि कृष्णा, वाइस प्रेसिडेंट सदानंद के रवि कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी के प्रमोद, हॉनरी प्रेसिडेंट के श्रीनिवास, एडवाइज़र एम नरसैया को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। कमेटी ने फैसला किया कि ये नई कमेटी 1 साल तक काम करेगी। बाद में एसोसिएशन के अरकान ने नई कमेटी का शाली और गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। बस में सफ़र करने वाली खातून का बैग चोरी। 4.7 तोले सोना और नकद रकम थे बैग में मौजूद। निज़ामाबाद के वन टाउन PS में एक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। SHO रघुपति के मुताबिक अनुष्का नामी खातून हैदराबाद से निज़ामाबाद ट्रेन के ज़रिए आई और बोधन जाने वाले बस में सवार हुई। इस बस में इसका बैग चोरी हो गया, जिसमें 4.7 तोले सोना और 2000 रुपये रकम मौजूद थे, जिसके बाद इसने वन टाउन PS पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक जब CCTV की छानबीन में मालूम हुआ कि एक खातून चोर ने इस चोरी को अंजाम दिया। विकसित भारत 2047 में तेलंगाना राइजिंग एक हिस्सा होने का गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने किया इजहार। तेलंगाना राइजिंग के नाम से रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले ग्लोबल समिट शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती गवर्नर जिष्णु देवु वर्मा, CM रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, कर्नाटक डिप्टी CM DK शिवा कुमार व दीगर विज़रा व अवामी नुमाइंदों के साथ मशहूर व मारूफ फिल्मी अदाकार नागार्जुन व मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर जिष्णु देवु वर्मा ने कहा कि विकसित भारत 2047 में तेलंगाना राइजिंग भी एक हिस्सा है। वह अहदाफ के मुताबिक तेलंगाना आगे बढ़ते हुए $3 ट्रिलियन की माशियत में तरक्की करना चाहिए। वह आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना आगे कदम बढ़ा रहा है और तमाम शोबेजात में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा रही हैं और इस हिस्से के तहत 2047 तक $3 ट्रिलियन की माशियत हासिल करने के ताल्लुक से एतमाद होने का इन्होंने इजहार किया। वह इस अहदाफ के समेत CM रेवंत रेड्डी हुकूमत विजन के तहत आगे बढ़ने का गवर्नर जिष्णु देवु वर्मा की जानिब से बताया गया है। सरपंच उम्मीदवारों के साथ बरादरी के बुजुर्गों की मशावरत अवाम में बहस का मौजू।
بلدیاتی انتخابات قریب آنے کے باعث سیاسی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ سرپنچ امیدوار دیہاتوں میں دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم تیز رفتار کرنے کی وجہ سے برادری کے بزرگوں اور قائدین امیدواروں سے خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں لانا اب اہم بحث مباحثہ میں تبدیل ہوا ہے۔ دیہاتوں میں مختلف مقامات پر منعقدہ مشاورت میں برادری کے بزرگوں نے ہر ایک امیدواروں سے علیحدہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے دیہات کی ترقی، عوام کو درپیش مسائل، فلاح و بہبودی پروگرام کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے تعلق سے اطلاع حاصل ہوئی ہے۔ تاہم یہ اجلاس صرف صلاح و مشورے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ قائدین اپنے پسندیدہ امیدواروں پر دباؤ ڈالنے کے الزامات عوام میں زیر بحث ہے۔ اس حصے کے تحت بار بار میٹنگ، عوام میں شکوک و شبہات، گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل میٹنگ کا انعقاد کیا جانا اور ہر ایک اجلاس کے بعد ہر ایک کی طرف جھکاؤ انہیں تیقن دینے سے متعلق افواہ جاری کے بحث رائے دہندوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے والے عوام کے لیے اب اہم سوال یہ ہے کہ برادری کے بڑے کس امیدوار کی حمایت کریں گے۔ عوام کو تیقن دینے والے برادری کے بزرگوں بعض افراد نے دیہات میں امن و سلامتی و ترقی ہو تو ہی ہم اس امیدوار کی حمایت کریں گے کہتے ہوئے عوام کو تیقن دیا جا رہا ہے۔ اب امیدوار صرف اس حمایت کے لیے کئی وعدے کرتے ہوئے انتخابی مہم میں زیادہ سرگرم نظر آنے کے تعلق سے گاؤں والوں کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ عوام کے رائے دیہات میں مقیم عوام اس اقدام کا خیر مقدم کر رہے ہیں، جبکہ بعض افراد ووٹ ہمارا حق ہے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ حاضر دماغ سے فیصلہ کر کے ووٹ دینے کا اظہار کیا۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں شراب نوشی کی حالت میں پکڑے جانے والے 150 افراد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تقریباً 13,32,000 جرمانہ عائد کرنے کا سی پی سائی چیتنیا نے کیا اظہار۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں واقع آرمور نظام آباد بودن ڈویژن کے علاوہ ٹریفک پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع تمام پولیس اسٹیشن کے قریب موجود پولیس اسٹیشن کے احاطے میں موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنقیح عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس حصے کے تحت 1 تا 12 تا 2025 سے 8 تاریخ تک گاڑیوں کی تنقیح عمل میں لانے کے باعث اس میں کل 150 مقدمات کو درج کیا گیا ہے۔ اس میں ملوث افراد کو اس سے متعلق کورٹ میں پیش کیے جانے کے باعث 150 افراد کو کورٹ کی جانب سے 13,32,000 جرمانہ عائد کیا گیا اور باقی 21 افراد کو 1 ہفتے تک جیل کی سزا سنانے کا سی پی سائی چیتنیا نے اظہار کیا۔ ڈومیسٹک ایئر لائن انڈیگو میں بحران بدستور جاری رہنے کے باعث 7ویں دن بھی پروازیں ہوئی منسوخ۔ ڈومیسٹک ایئر لائن انڈیگو میں بحران بدستور جاری رہنے کے باعث 7ویں یوم بھی پروازیں منسوخ ہونے کے علاوہ آج شمشاباد ایئرپورٹ میں 112 سروسز کو انڈیگو کی جانب سے منسوخ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کو آنے والے 58 سروسز ہونے کی بنا پر یہاں سے جانے والے 54 ہوائی جہاز ہونے کا اس سے متعلق اہلکاروں کی جانب سے بتایا گیا، جس سے مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نظام آباد اربن حلقے کی ترقی کے لیے 2 سالوں میں 30 کروڑ روپے کی بھاری فنڈ کی منظوری عمل میں لا کر کئی ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کا اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کیا اظہار۔ ضلع بی جے پی دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کہا کہ اربن حلقے کی جامع ترقی کے لیے گزشتہ 2 سالوں سے تقریباً 130 کروڑ روپے فنڈ کی منظوری عمل میں لانے میں کامیابی حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ خاص طور پر زیر التوا اہم ترین پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں فنڈ کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ حکومت کی جانب سے حلقے کے لیے آنے والے ہر ایک روپے کا عوام کی فلاح و بہبودی کاموں کے لیے خرچ کیا ہے۔ اس فنڈ سے اربن کے علاقوں میں بنیاد کا سہولیات کی فراہمی اور روڈ کی تعمیر کے علاوہ صاف شفاف پینے کا پانی، تعلیم، طب کے میدان میں نمایاں تبدیلیاں لانے کے لیے کوشش کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ TUFIDC کے تحت ہر ایک ڈویژن کی ترقی کے لیے کروڑ روپے فنڈ کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے۔ اربن ایم ایل اے نے کہا کہ حکومت کے خصوصی فنڈ میں ان کی جانب سے کیے گئے مطالبے کے باعث
100 करोड़ तखमीना में हुकूमत ने गुज़िश्ता माह 37 करोड़ रुपये की इजराई अमल में लाने का इजहार किया। వాటర్ ట్యాంక్లు 9 అర్బన్లో 9 రూరల్ ఆల్రెడీ 5 వాటర్ ట్యాంక్ల వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. ఆదర్శ్ నగర్, కంటేశ్వర్ 5 వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. నేను మొన్ననే రివ్యూ తీసుకున్న వాళ్ళతోటి 4-5 రోజుల క్రితం 5 స్టార్ట్ అయింది. 150 కిలోమీటర్ల కొత్త పైప్ లైన్, పాత ఏదైతే డ్యామేజ్ చాలా సంవత్సరాల క్రితము, తర్వాత వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కెపాసిటీ పెంచడం, వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 150 మందికి వచ్చింది. తప్పకుండా వర్క్ ఫండ్ శాంక్షన్, వర్క్ స్లో అవుతా ఉంది. తప్పకుండా కొన్నెక్కడ అయింది, కొన్నెక్కడ గంగాస్థాన్ 1 पंचायत इंतखाबात के लिए सख्त सयानती इंतजामात किए गए, सीपी सईद चैतन्य का इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात को पुरअमन तौर पर इनकाद अमल में लाने के लिए सीपी सईद चैतन्य की क़ियादत में सख्त सयानती इंतजामात किए गए। इसमें कुल 1384 अमला इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए चेक पोस्ट के तहत 361 लीटर लिक्कर को जब्त किया और अमन व अमान में रुकावट न होने के लिए 183 अफराद को बाइंड ओवर किया और कवायद की खिलाफ वर्जी करने के बाइस 3 मुकदमात दर्ज करने का इजहार किया। मुलाजिमीन पोस्टल बैलेट के तहत वोट देने की कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी की ताकीद। पंचायत इंतखाबी फ़राइज़ में शिरकत करने वाले मुलाजिमीन अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए MPDO दफ्तर में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाने का ज़िला इंतखाबी ऑफिसर कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी की जानिब से बताया गया है। वो इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने वाले मुलाजिमीन इससे मुतालिक MPDO दफ्तर में कायम किए गए फैसिलिटेशन सेंटर में पोस्टल बैलेट के तहत अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की ताकीद की। इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद होने वाले लोक अदालत से फरीकीन इस्तेफादा हासिल करें, जिला जज भरत लक्ष्मी का इजहार। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए कौमी लोक अदालत में बतारीख 21/12/2025 को ज़िला निज़ामाबाद, आरमूर और बोधन में कौमी लोक अदालत का इनकाद अमल में लाया जाएगा। इसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात काबिल माफ़ी जराइम, जायदाद के तनाज़ात, दीवानी मुकदमात, इंश्योरेंस मुकदमात के अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट मुकदमात, ख़ानदानी झगड़े और बैंकों से मुतालिक मुकदमात को हल करने के लिए लोक अदालत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल चालान 5 से शुरू होकर 40 या 50 चालान हो तो इससे 9/12/2025 तक आप अपने इलाके के पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में चालान की रसीद लेते हुए कोर्ट में चालान की अदायगी अमल में लाने वालों को 50% डिस्काउंट देने का इजहार किया। లాగానే ఈసారి కూడా నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ఈ నెల 21వ తేదీన జిల్లా కోర్టులలో, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న కోర్టులలో కూడా జరపబడుతుంది. ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగానే సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్లో ఎవరైతే రాజీ పడాలని అనుకుంటున్నారో కక్షిదారులు, వారు ఆ రోజు జిల్లా కోర్టులకి వచ్చి వారి యొక్క కేసులను సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి కేసు సెటిల్మెంట్ అయినప్పుడు అవార్డు కూడా లోక్ అదాలతులు ఇస్తాయి. ఆ అవార్డు మీద ఎటువంటి అప్పీల్ కానీ ఎటువంటి ఫర్దర్గా దాని మీద వెళ్ళడానికి లేదు. అది ఫైనల్। एडपल्ली मंडल के मंगलपाड़ू देहात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत से मुकाबला करने वाले CV श्रीनिवास गौड़ ने सरपंच की इंतखाबी मुहिम चलाई। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ मंगलपाड़ू देहात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत से मुकाबला करने वाले CV श्रीनिवास गौड़ के सरपंच इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। आज सुबह के अव्वलिन सातों ब्लॉक कांग्रेस सदर बी राम मोहन की ज़ेर एहतमाम घर घर इंतखाबी मुहिम का इनकाद अमल में लाया गया। वो गुज़िश्ता 10 सालों में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार पर आने के बाद कई तरक्याती कामों के लिए न सिर्फ फ़ंड की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, बल्कि तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हिमायत से मुकाबला करने वाले CV श्रीनिवास गौड़ को भारी मेजॉरिटी से फतेह दिलाने की सूरत में रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की नुमाइंदगी के ज़रिए हासिल होने वाले फ़ंड से देहात को तरक्की की जानिब गामज़द करने का इजहार किया।
बालकोंडा में महकमे पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर बालकोंडा मंडल में FST टीम की जानिब से गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाई गई। इस हिस्से के तहत आज किसान नगर में टीम के अराकीन ने गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाने के दौरान 50,000 से ज़ायद रकूमात को मुंतकिल न करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर हर एक फर्द इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल आवारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में रूरल MLA कैंप दफ्तर में धरपली मंडल नडमी तांडा से सरपंच के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होकर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की मुलाकात। निजामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास में वाक़ई रूरल MLA कैंप ऑफिस में धरपली मंडल नडमी तांडा सरपंच व नायब सरपंच वार्ड मेंबर के तौर पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाते हुए रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर्स को मुबारकबाद पेश की। सरपंच के तौर पर धरावत केतु, नायब सरपंच की हैसियत B सतीश, वार्ड नंबर 1 धरावत संतोष, वार्ड नंबर 2 B सुंदी, वार्ड नंबर 3 धरावत चंदी, वार्ड नंबर 4 B सतीश, वार्ड नंबर 5 B सुशीला व दीगर को बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में धरपली मंडल सदर बाला राजू व दीगर मौजूद थे। अख्ताम से कबल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का किया गया शानदार पैमाने पर आगाज। इस इफ्तिताही तकारीब में रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, CM रेवंत रेड्डी के अलावा मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने की शिरकत। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के क़याम गाह में अवामी हलचल। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सरपंचों से मुलाकात करते हुए रूरल MLA ने पेश की मुबारकबादी। निजामाबाद अर्बन हल्के में 2 सालों में 130 करोड़ रुपए भारी फंड की मंजूरी अमल में लाकर कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का निजामाबाद BJP दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता का इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 150 शराब नोशी के मुकदमात किए गए दर्ज। 13,32,000 रुपये जुर्माना आयद करने का CP सईद चैतन्या ने किया इजहार। मुलाजिमीन पोस्टल बैलेट के तहत अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। MPDO दफ्तर में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर को कायम करने का इंतखाबी ऑफिसर कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। भैंसा मुस्तकीर में खातून की दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। कातिल खून आलूदा कपड़ों में नाश के ही पास बैठा रहा। ये मंजर देखकर आईनी शाहिदीन हैरत में पड़ गए। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।